Hi, hello, and welcome or welcome back. Actually, I can't say welcome back. This is the first video of the channel. But yes, welcome. And no, I'm not going to bullshit you around with, hey, I'm Pari, I'm this, I'm that, and this is where I am, this is what I'm doing. I can't, because you already know that, and it's because you know that you're here and you're watching me on this channel as well. So yeah, hi, and this is the first video for this channel. It's called Unscripted Pari, and as the title suggests, as I have posted these stories, as I've told you before about this channel, this is going to be all about who I am, what I do in actual real time, what I do in actual real life. How has law school been? How has life before law school been? Who am I? Where was I born? How did I study? Everything that I've done so far and everything that I'm doing right now. And all those comments about you've been so MIA, you don't update us, you don't post enough. You won't have those complaints anymore, because I have too much to post. It just gets really overwhelming, and I feel like TLV is exactly not the kind of platform that I would like to post all those things on, because like it's not that personal. It's about you guys, it's about your preparation, and it's about your law entrance, right? And it's also about showing you what law school has to offer essentially. But yeah, students के perspective से law school कैसा दिखता है ना, it's just very different from what even I have been trying to show you, even we've been trying to show you. But on this channel, expect everything unfiltered, everything like bilkul from the core to the core, something like that. And I know I'm going to sound pretty vague in this video, so you have to bear with me. And starting off, so before law school happened, before CLAD happened, before this YouTube channel happened, before any of this ever happened, there was 2006. And there was the city of Jabalpur, Madhya Pradesh, where I was born. And yeah, so right now I'm a 19-year-old who's studying in law school, called to be one of the most prestigious law schools in the country. And I don't say this lightly. I know how much all of this means to a lot of you guys. But एक बार आओगे तो पता लगेगा. So just ask the people who actually live here, who are isolated from the city, who are living on like, यार हम जहाँ रहते हैं ना, इट्स कॉल्ड नालसा यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ हैदराबाद. हम हैदराबाद में रहते भी नहीं, हमारा डिस्ट्रिक्ट भी हैदराबाद नहीं कहलाता. हमारा डिस्ट्रिक्ट भी, इट्स कॉल्ड समथिंग एल्स. यू गोना गूगल इट एंड यू गोना फाइंड आउट. बट द थिंग इज, yeah, we live a lot far away from civilization. I think that's one of the reasons that pushes me more into content, because भाई कुछ नहीं है करने के लिए यहाँ पे, मतलब लिटरली कुछ भी नहीं है. कॉलेज के पीछे एक लेक है, एंड आसपास बहुत कैट कॉलिंग होती है. तो एज अ गर्ल आई कांट गो आउट दैट फ्रीक्वेंटली, दैट अलोन. मतलब एटलीस्ट लेक वेक के साइड. दूर मुझे जाना है तो फिर हैदराबाद इज़ अ वेरी सेफ सिटी. आई कैन गो एनी वेयर एनी टाइम इन द नाइट ऑल्सो. बट या दैट्स प्रीटी मच अबाउट इट. तो यहाँ से बाहर निकलने का बहुत ज़्यादा कुछ ऑप्शन होता नहीं है, मन भी नहीं करता ऑन मोस्ट डेज. एंड या, दिस इज़ माई पैराडाइज, दिस इज़ माई रूम, जो बहुत गंदा है. लाइक यू कैन नॉट सी इट राइट नाउ बिकॉज दैट्स हाउ आई हैव क्रिएटेड दिस बैकग्राउंड. बट मेरा रूम अभी बहुत ज़्यादा गंदा है, एंड आई रियली डोंट वांट टू शो इट टू यू गाइज राइट नाउ. मैं जब थोड़ी सफाई कर लूँगी, जब मेरा रूम थोड़ा सेट वेट हो जाएगा, इवन आई थिंक आई एम प्लानिंग टू डू लाइक अ रूम मेक ओवर का वीडियो एज वेल. लाइक आई शो यू वेयर आई स्टार्टेड ऑफ विथ वॉट वॉज लाइक. सो मेरे पास ना एक क्लिप है जब मैं पहली बार इस रूम के अंदर आई थी, एंड मैंने दरवाज़ा खोला था, एंड वो रूम एक्जैक्टली जैसा दिख रहा था, मैंने वैसे ही रिकॉर्ड करा था, मैंने कुछ भी चेंज नहीं करा था. तो आई थिंक आई कैन पुट दैट, एंड देन वी कैन जस्ट स्टार्ट गोइंग अबाउट द मेक ओवर ऑफ दिस रूम, बिकॉज ये बहुत गंदा है. And I don't know how many years I'm going to be in this room itself, so it's better to kind of revamp the place where you're staying, and it just flows into what, a better lifestyle. I don't think so. मेरी lifestyle बहुत ख़राब है. मतलब मुझे समझ नहीं आता जो लोग इन्फ्लुएंस हो जाते हैं मुझसे, वो कैसे हो जाते हैं. बिकॉज मेरे को मतलब ऑन मोस्ट डेज लगता है कि मैंने कुछ भी नहीं उखाड़ा हुआ है लाइफ में. बिकॉज या, I'll tell you. So since we were talking about how I started off, this was 2006 when I was born, and I have completed my schooling from nursery to 12th from like one single place. I've never moved schools. It's one of the reasons that I just have 2-3 core friends. उसके अलावा मेरे दोस्त नहीं है स्कूल में, because भाई school or college or every place is like pretty much the same. But yeah, because I didn't move a lot of places, I don't know a lot of people from a lot of places. ठीक है, मुझे वो उतने ही लोग पता है जिनके साथ मैंने पूरा बचपन देखा है, जिनके साथ मैंने अपनी पूरी टीनेज लाइफ देखी है. सो देर इज़ दैट. आई वेंट टू सेंट गेब्रियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल in Ranji in Jabalpur, and
if there are any school folks right now, please comment down below. And this is one हरकत I thought I'll never do on YouTube कि भाई बीच में से कुछ mention कर दूँगी relatables और फिर लोगों को comment करने बोल दूँगी, but ठीक है, मेरे दिमाग में भी सेम शिट चलती है जो हर क्रिएटर के दिमाग में चलती है. So one thing about that. Second thing, while I was going to school, my school life was a balance of a lot of things. First of all, मैं वो बच्ची थी जो बिल्कुल from nursery, kindergarten onwards, I was like the first bencher. I always want to score good marks. I always want to do good in studies. I want to do good in everything. मेरे को क्लास मॉनिटर भी बनना था, मेरे को स्कूल लीडर भी बनना था, मेरे को स्पोर्ट्स भी करने थे, मेरे को को करिकुलर्स करने थे, मेरे को डांस करना था, सिंगिंग करनी थी, योगा करना था, सब कुछ करना था. सिंगिंग बाय द वे, जिन लोगों ने भी मुझे स्टेज पे गाते हुए सुना है, भाई आई फॉरगिव, लाइक प्लीज़ आई आस्क फॉर फॉरगिवनेस, बिकॉज मैं बहुत गंदा गाती हूँ. तो मैंने बहुत मतलब मैंने कोशिश बहुत करी है और मैंने बहुत जगह बहुत कुछ करा है, बहुत क्रियाक्रम करे हैं मैंने. बट द पॉइंट इज़ कि मैं बहुत गंदा गाती हूँ. सो प्लीज़ जिसने मुझे गाते हुए सुना है, जस्ट प्रे फॉर योर ईयर्स. थिंग इज सेकेंड, हाँ डांस भी करना था, स्केटिंग भी करनी थी, बास्केटबॉल खेलती थी मैं, चेस खेलती थी, कराटे आई हैव डन, गिटार आई हैव लर्न. गिटार मेरा यहीं लिटरली इस रूम में पड़ा हुआ है, मैं तुम्हें दिखा दूंगी किसी और वीडियो में. बट या वो भी मुझे ठीक से नहीं आता ऑनेस्टली. सो आई वांटेड टू बी लाइक जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स काइंड ऑफ किड. एंड मैं बहुत अनोइंग बच्ची थी. लाइक मैं भाई क्लास मॉनिटर थी फॉर लाइक अ लॉट ऑफ ईयर्स इन स्कूल. एंड मैं वो ही लड़की थी जो बोर्ड पे नाम लिखती थी और उसके आगे 4 स्टार लगा देती थी कि इसने ज़्यादा बात करी है, इसको पनिशमेंट दो. किसी को कोई पनिशमेंट नहीं मिलती थी कभी भी. ठीक है, मैं स्कूल लीडर भी रह चुकी हूँ. मेरे को इतनी क्लासेस माइंड करने के लिए बोला गया जिसमें मेरे को समझ में नहीं आता था. मैं छोटे बच्चों को माइंड करने जा रही हूँ, वो मतलब मेरी जान ले लेते थे कि आप वही हो ना, आपको मैंने इस डांस में देखा था, आप तो बहुत बंदरिया जैसा नाचते हो. लाइक दिस इज़ वॉट आई हर्ड थ्रू आउट लाइक प्राइमरी एंड मिडिल स्कूल. बहुत वियर्ड चीज़ हुई है मेरे साथ स्कूल में. देन केम हाई स्कूल एंड विथ हाई स्कूल केम मेरा ऑल्सो सेम एटीट्यूड एज लाइक अ लॉट ऑफ पीपल दैट अब हमें फ्रीडम चाहिए, अब हम बड़े हो गए हैं, अब हमें ये करना है, अब हमें वो करना है, अब हमें घूमने जाना है, अब हमें बंक मारना है. ये वो बंक तो भाई मत पूछो कितना करा और क्या करा है, बाद बताते हैं इन सम अदर वीडियोज़. बट और वहाँ से स्टार्ट होती है स्लट शेमिंग, जो मेरे लिए तो मिडिल स्कूल में स्टार्ट हो गई थी. एंड भाई इतने शिटी टीचर्स और इतना शिटी बिहेवियर. देयर वाज दिस वन टीचर हु यूज्ड टू ट्रीट मी लाइक अ टचेबल. मैं जिस दिन स्कूल जाती थी ना, वो एक पूरी रो खाली कराती थी और उस पूरी रो में अकेले मुझे बैठाती थी और बाकी सबको पूरे क्लासरूम में फिट कर देती थी. सीट्स हो चाहे ना हो, बाकी सब लोग बाकी सीट्स में बैठेंगे और वो एक रो में अकेली मैं बैठूंगी. बिकॉज वो बेसिकली 10th 11th के टाइम पे मेरे टीचर्स का बिहेवियर टुवर्ड्स मी वाज, ये सब अगर करना है ना तो ये स्कूल के बाहर जाके करो. व्हाट डू दे मीन बाय ये सब? देयर वाज दिस वन डे, मैंने शर्ट पहनी हुई थी, दिस इज़ अ शर्ट पहनी थी मैंने, एंड उसका टॉप बटन खुला हुआ था. एंड वो कैसे खुला मुझे नहीं पता. एट स्टार्ट तो मतलब रियली मुझे नहीं पता, बिकॉज आई वॉज दिस फर्स्ट बेंचर किड. मेरे को नहीं फंसना होता था लफड़ों में कि मैं बहुत इरिटेट हो जाती थी अगर मुझे कोई टीचर कुछ बोल देता था तो ऑब्वियसली मेरे को लफड़े में नहीं फंसना था. एंड वो खुला हुआ है एंड किसी टीचर ने मुझे आगे उस चीज़ पे टॉन्ट मारा है, कमेंट करा है, वट ठीक है, ख़त्म हो गई बात. फ्रॉम द नेक्स्ट डे ऑनवर्ड्स ऑल द टीचर्स फ्रॉम द होल एंटायर स्टाफ रूम इज़ लाइक यही सब हरकतें करनी है तो अपने घर पे जाके करो. उसके बाद से स्टॉप गोइंग टू स्कूल. पूरी 12th मैंने स्कूल अटेंड नहीं करा. वन ऑफ द रीजंस वाज बिकॉज आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर क्लैट. एंड मेरे स्कूल वालों को समझ ही में नहीं आता था कि क्लैट प्रिपरेशन इज समथिंग दैट यू आर एक्चुअली डूइंग, लाइक यू नीड टू डू दिस शिट. उनको लगता था जेई कर रहे हो, नीट कर रहे हो तो ही तुम कुछ कर रहे हो लाइफ में. वो जितने लोग जेई और नीट कर रहे थे ना मेरे स्कूल में से, उनमें से किसी का किसी भी IIT और NIT और एम्स में नहीं हुआ है, मैं पहले बता दूँ. सो इट्स नॉट कमिंग फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ एरोगेंस. ऑल आई एम ट्राइंग टू से इज दैट इट वॉज नॉट गिवन एज मच एज इंपॉर्टेंस. लाइक मैं कॉमर्स में थी फर्स्ट ऑफ ऑल, तो कॉमर्स वालों की तो वैसी कोई इज्जत नहीं थी हमारे स्कूल में. और हमारे स्कूल में आर्ट्स था ही नहीं भाई. मतलब आर्ट्स ऑप्शन ही नहीं है तुम्हारे पास कि तुम ह्यूमैनिटीज़ चूज ही नहीं कर सकते हो, बिकॉज इट इज़ दैट यूजलेस ऑफ अ सब्जेक्ट. वाई डू यू हैव टू टेक ह्यूमैनिटीज़? मेरे प्रिंसिपल के शब्द हैं, वाई डू यू हैव टू टेक ह्यूमैनिटीज़? बिकॉज देयर वाज दिस वन पॉइंट आई वाज गोइंग टू लीव माई स्कूल एंड गो टू अ डिफरेंट स्कूल टू परस्यू ह्यूमैनिटीज़ बिकॉज it aligned more with my aspirations. I wanted to be a lawyer ever since I was in 8th grade. So I knew it very clearly कि मेरे को ह्यूमैनिटीज़ लेके ही पढ़ना है. But then eventually I stayed back because वो स्कूल बहुत दूर था एंड सब अलाइन नहीं हो रहा था. बट बहुत ड्रामा था. सो मेरे स्कूल में
ह्यूमैनिटीज़ ही नहीं था, मुझे कॉमर्स लेके पढ़ना पड़ा, विच आई फील लाइक बाय लाइक डाउन द रोड कॉमर्स हैज़ ऑल्सो गिवन मी इनफ लेवरेज. मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे समझ आ जाती हैं इवन इन लॉ स्कूल राइट नाउ, बिकॉज आई टुक कॉमर्स एंड आई थिंक इट्स बिन अ ग्रेट एडवांटेज दैट वे. बट एनीवेज, एक तो मैं कॉमर्स में थी तो हम लोगों की तो कोई इज्जत थी नहीं. मैं कॉमर्स सेक्शन की भी मॉनिटर थी भाई फॉर द होल ऑफ 11th ग्रेड. स्टिल हम लोगों की कोई इज्जत नहीं थी 2 रुपये की. हम जाते थे प्रिंसिपल ऑफिस में, हमें उसके बाहर निकाल दिया जाता था. मैं जैसे जाके अपने कोऑर्डिनेटर या प्रिंसिपल से बोलती थी कि मुझे छुट्टी चाहिए, मुझे क्लैट प्रेप के लिए जाना है, मुझे ट्यूशन जाना है, मुझे यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, या मुझे एग्जाम से जल्दी छोड़ दो, मुझे मेरी कोचिंग है, मेरे को लेट हो रहा है. तुम क्या प्रिपेयर कर रही हो? तुम तो कॉमर्स में हो, CA कर रही हो तुम. एंड ठीक है, इट कम्स वेरी नेचुरली टू पीपल, आई गेट इट. बट भाई जब मैं बोलती थी क्लैट, ये क्या होता है, इसके लिए प्रिपेयर करना पड़ता है क्या? ये तो मतलब बहुत बेइज्जती वाली बात है कि तुम्हें क्लैट के लिए पढ़ाई करनी पड़ती है. anyone of you who are, I think most of you are preparing for CLAT, भाई please tell me that पढ़ना पड़ता है. please reassure me because I think I'm missing something here. ठीक है, ये सारा ड्रामा होता था 11th 12th में, एंड दिस इज़ वेयर आई केम फ्रॉम. दिस इज़ द काइंड ऑफ स्कूलिंग आई हैड. एंड घर वालों के बारे में कभी और बात करेंगे, बिकॉज नेक्स्ट लेवल थी आपका. ठीक है, तो ये सारे ड्रामे से निकल के आई फाइनली केम टू लॉ स्कूल. एंड लॉ स्कूल में भी एडजस्टिंग वॉज वेरी डिफिकल्ट बिकॉज you had the whole diverse background kind of thing. So it's like my family in itself is very, very diverse. And then the place that I come from is not the most advanced cities in the world. It's like it's a tier 3 city. What else do you expect out of people? So essentially it was never the case कि मेरे को basic fashion नहीं आता या मेरे को basic English नहीं आती. My English was pretty good. Touch wood, my English was pretty good always. And like I've won literary prizes and all of that. So I know that, you know, all of this was like a boon to me. Everything was great. But there are a few things that were just, you know, like a lot of brands don't exist back there. Like a lot of subculture and, you know, plot things that don't exist, that just do not exist for us tier 3 kids. And once you come to law school or any college for that matter, you are shamed for it left, right and center, and I don't get it. And people do it in the most subtle ways. There was this one point, so I had this like really old laptop, okay, and there were like a lot of people who used to shame me about it, a lot of close people, quote unquote. And not just that, it was not even कि financially कुछ है या जो भी है, but it was just that I was able to do with that laptop, so I was doing with it. Anyways, apart from that, a lot of cultural and subcultural stuff, that going to the movies all the time maybe, or going out for dinners very frequently, going out for lunches very frequently, ordering in very frequently, this was not what we learned growing up. This was just simply not it. And when I saw it happening here, and when I started managing my own finances, and when I knew that I am able to, you know, I'm going to be able to do all of this, even then it did not make much sense to me. So coming from like basically मेरे कहने का मतलब है इस पूरी कथा के बाद कि भाई everyone comes from a different place, everyone is in a different place in life all the time, even when you are like studying say in the same institution in the same year or whatever. So ये जो सारी चीज़ें होती हैं ना, जो ऑन द सरफेस जितना भी प्रेशर होता है कि तुम्हें, अगर तुम कॉलेज में हो, यू आर सपोज टू गो ऑन अ ट्रिप, यू आर सपोज टू डू अ सर्टेन टाइप ऑफ मूट, यू आर सपोज टू डू ADRs, यू आर सपोज टू डू डिबेट्स, यू आर सपोज टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स, राइट? यू आर सपोज टू लिव अ सर्टेन वे, यू आर सपोज टू वेयर अ सर्टेन टाइप ऑफ क्लोथ्स, एंड अगर तुम बहुत फ्रीक्वेंटली एथनिक पहन रहे हो तो भी यू आर गोना बी शेम्ड अबाउट इट, ऑल ऑफ दैट. एंड इट्स नॉट इवन लाइक, सी दैट इज़ द होल प्रॉब्लम अबाउट द सब कल्चर थिंग, कि कोई भी आके तुम्हें डायरेक्टली अटैक नहीं करेगा, कोई भी आके तुम्हें मुंह पे नहीं बोलेगा कि यार तुम बहुत भेंजी हो, कोई भी नहीं बोलेगा. बट they're going to be clues, they're going to be, you know, otherings, they're going to be methods by which they're going to do this, and it will always come subtly and it's going to affect you the most. So I feel like थ्रू आउट माई इंट्रो में तो मैं बस यही बताना चाह रही थी दैट दिस इज़ नॉट द प्लेस दैट आई फील लाइक आई बिलोंग टू, बट इट्स ऑल्सो अ प्लेस दैट आई हैव रियली काइंड ऑफ वर्कड हार्ड टू बी इन, एंड आई लव बीइंग हियर बिकॉज ऑफ वॉट opportunities it has for me in the future, but it's not really the best place to be in. And I told you why, because of everything that has happened to me in the past and everything that has basically
seen me grow up, all those factors, the whole city factor, the whole cultural factor, the whole family factor, जो कि अभी आई एम गोइंग टू एलैबोरेट फर्दर, मतलब बाद में क्या क्या. बट अभी इतनी कथा करने का सिंपली मतलब ये था कि in no point in life you're gonna feel like ओ वाओ अब सब ठीक है, अब सब नॉर्मल है, अब सब कुछ सही हो गया है एंड अब इसके बाद तो सब सॉर्टेड है. ये बहुत बड़ी मिथ है कि एक बार 10th कर लो सब ठीक हो जाएगा, एक बार 12th कर लो सब ठीक हो जाएगा, एक बार एंट्रेंस एग्जाम निकाल लो सब ठीक हो जाएगा, एक बार अच्छे कॉलेज चले जाओ सब ठीक हो जाएगा, एक बार अच्छी नौकरी लग जाएगी सब ठीक हो जाएगा. कभी कुछ ठीक नहीं होता है. Eventually it all just comes down to this one thing: how you have managed it throughout the years and how you are going to manage it throughout the years. So basically ये बहुत बड़ा rant था, ठीक है. एंड नाउ दैट डाउन द लाइन दैट आई नो आई हैव रियलाइज्ड इट कि भाई ये बहुत ज़्यादा बड़ा रैंट था. बट आई एम ट्राइंग टू कंक्लूड इट बाय सेइंग दैट थ्रू आउट दिस चैनल आई एम गोइंग टू actually tell you that, you know, everything that happened, everything that I dealt with and how I dealt with it, academically, professionally, personally, because I feel like on a lot of levels a lot of us face these things but हम बात नहीं कर पाते हैं. And second thing is कि अगर तुम्हें बस मुझे सुनना पसंद है then that's also great. मतलब I don't have a problem, ठीक है. मुझे कॉन्वर्सेशन करने में कोई दिक्कत नहीं है, मुझसे बस बातें करा लो कितनी भी लंबी. I don't have a problem. Second thing, there are a few habits of mine that I really want to put up on this channel. There are a few hobbies of mine that I have never shared before. Like I love dancing, so I am planning to do a lot of dance videos here. Then secondly, I love journaling. This is like a hobby and a habit that I've recently picked up and I want to continue it for longer. So there is that. There is running. I have really started enjoying running. I have done a 5K. I'm gonna show you the medal sometime later. But like anyways, I've just done one 5K race so far, but I'm planning to do more and I am practicing, I am training. So there is that. एंड ऑफ कोर्स आई लव एकेडमिक्स यार. मतलब मुझे बहुत मज़ा आता है एक्चुअली पढ़ाई करने में. बहुत कम मुझसे हो पाती है पढ़ाई, बट जब मैं पढ़ती हूँ तो मुझे बहुत मज़ा आता है. एंड अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स. आई लव ट्रैवलिंग. सो अगर if in the near future something comes up and I'm going somewhere, then I'm definitely going to show you that on this channel as well. And yeah, I think one more thing that you can expect from this channel is daily vlogs. This is going to be very very soon, like once this semester starts. सेकेंड ईयर का सेकेंड सेमेस्टर, एसेंशियली फोर्थ सेमेस्टर जब ये स्टार्ट हो जाता है तो आई एम प्रिटी श्योर गोना बी मेकिंग डेली व्लॉग्स. जैसे मैं बहुत पहले बनाती थी TLV पे, बहुत शुरू में. मैंने बिल्कुल जब मेरा नालसर का फर्स्ट वीक था तब मैंने डेली व्लॉग्स बनाए थे. उसके बाद से मैंने कभी नहीं बनाए. एंड इफ़ यू वांट यू कैन गो वॉच देम, बट आई एम गोइंग टू क्रिएट सम ऑफ देम अगेन. एंड essentially all of this I just wanted to put out the idea कि क्या क्या होना है इस चैनल पे. and also I wanted to like just really rant out right now. so thank you for listening, thank you for staying for so long, and I hope to see you again. And just thank you for being on this channel. Thank you so much for actually supporting me, not just on a forefront where I am able to deliver something to you which is flat content, but also when I am trying to make something for essentially for me or to just express myself. So just thank you for being here. Bye bye.